is given a is equal to 4, that we can write 2 to the power 2 by 3. This is 2 to the power 1 by 3 and 1. Find value of this. So what I'm doing, I'm first writing this 4 to the power 1 by 3 as 2 to the power 2 by 3 and adding 1 both sides. So this becomes 2, right? So now we know that if I'll take this 2 to the power 1 by 3 common from the number, so 2 becomes 2 to the power 2 by 3, 2 to the power 1 by 3 becomes 2 to the power 0, and 2 to the power 2 by 3 becomes 2 to the power 1 by 3. So now the number is coming as a plus 1 is equal to 2 to the power 1 by 3 into a, right? So divided by a both side. So I'm getting something like this, right? This, and the trick, you know, this is here, cubing both sides. So you are getting this number, right? And transferring 1 will get your answer. Right? Send me the questions. Send me the questions. I'll discuss. सर मैंने भेजा व्हाट्सएप पर. अब अभी कर देता हूँ सॉल्व. The fourth answer is 1, right? किसी ने शायद मेरे से पूछा भी था, सर इसका बेस क्या है, जबकि बेस यहाँ गिवन है, तो व्हाई टू वरी अबाउट दैट. बेस नहीं गिवन रहे, देन द बेस बी 10, right? If it is given, so 100% it is given, right? So we can rewrite this as log base 2 3 by 2 plus log base 2 4 by 3 up to log base 2 n plus 1 by n is equal to 4. Now we know the formula, log a plus log b plus log c up to this. We can multiply the numbers is equal to 4. And we know that these will be cancelling out. So this will be less. Sure, this will be something like this. Transferring power, n plus 1 is equal to 2 to the power 4. That's n plus 1 is equal to 16, n is equal to 15. Sir, there is even 2, no sir? N plus हाँ 1 by नीचे 2 है ना. कट किया ना. किधर को? 2 to the power 3 of that. If you want to ask anything, please raise your hand and ask properly, beta. No problem. I'm here only now. Yes, Rana. सर वो क्वेश्चन 4 में मैंने 1 ही आंसर किया था, बट ये क्वेश्चन में बेटा, इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत? हाँ सर, और इसमें भी डाउट है. क्या डाउट बोले? सर वो n plus 1 by 2 is equal to 2 raised to 4 रहेगा ना? n plus 1 by 2 था. अच्छा, सही बोल रहे बेटा. You're right. Absolutely right. So this is 30. सीधा इसे रब करके ही लिख देता हूँ. This would be 32 minus 1 is 31. Okay. Yes. उसमें कुछ आंसर गलत आ रहे हैं क्या लास्ट वाले क्वेश्चन में? हाँ सर, मैंने 1 आंसर किया था, बट करेक्ट आंसर 2 दिखा रहा है. अच्छा, उसमें करेक्शन की जरूरत पड़ेगी बेटा, उसमें 1 ही आंसर होगा ना. ओके सर. Next one question is there. These are the simple question. 100% you have to get. 37 minus 20 root 3 is equal to x minus y root 3. Right? So you have to get the value of x and y की values check, you know? So x plus y plus 4 upon y.
9. अभी देख सॉल्व करता हूँ बेटा. Now we have to compare both the numbers, right? So obviously we have to make this under root. Like we have to solve for this number must be the square of the number, then only we'll get this, right? 37 and this 37 minus 2 into 10 into root 3, right? So we have to choose number accordingly. Like the product will be 10 root 3 and the square, sum of the square will be 37. 10 and root 3 not working, right? 5 to root 3 to 5 root 3 is 5 is 25 and 2 root 3 is 12. Yes, working. So I can say, okay, the number is nothing but 5 minus 2 root 3 the whole square, and cancelling the square with this. So x is equal to 5, y is equal to 2, right? 5 plus 2 plus 2 is 9. 13 अंडर रूट ऑफ, कुछ क्वेश्चन मैंने कोशिश किया था नया कुछ करने का. होपफुली हाउ मेनी ऑफ यू या ठीक है. तो ये क्वेश्चन अभी देखते हैं. तो 1998, 99, 2000, 2001 plus 1 upon 4, right? So obviously we have to solve this, right? So we can start from anywhere, like the differences are 1, 2, 3, like going 1, 1, 1, 1, 1 plus 1, right? So let's try one thing. If I'm saying this number is n, this is n plus 1, n plus 2, n plus 3, where n is 1998 plus 1 whole thing divided by 4, that we have to find with under root. So I'm solving only this thing. केवल इसे सॉल्व करके देखता हूँ पहले कि एग्जैक्टली व्हाट इज कमिंग, राइट? दिस इज ये और ये मल्टीप्लाई किया एंड ये दोनों को मल्टीप्लाई किया प्लस 1, राइट? सपोज n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 as t. So this will be t minus 1 into t plus 1 plus 1. So this is t square minus 1 plus 1 will be t square, where t is n square plus 3n plus 1, right? So what we are getting, n square plus 3n plus 1 upon 2. Go with this. ध्यान से देखना कैसे सॉल्व करने के लिए, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए what you have to do. Raise your hand, right? Yes and no? सर मेरा एक्चुअली डिस्कनेक्ट हो गया था. आप क्वेश्चन नंबर 11 एंड रीड कर सकते हैं? हाँ बेटा देख लेना थोड़ी देर में, अभी जो कर रहे हैं वो तो देखो. हाँ सर, वो भी डाउट. राइट, तो मैंने क्या किया कि कंबाइन किया n एंड n प्लस 3 को एंड n प्लस 1 एंड n प्लस 2 को, राइट? एंड सबसे जो ट्रिक है इसमें, जो वर्किंग होनी थी आपके साथ में, वो मैंने किया n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 को t लिया.
एक में t+1 आ गया, एक में t-1 आ गया, तो यू आर गेटिंग t², राइट। सो दिस कंप्लीट, जो ऊपर में था वो t² आ गया और नीचे जो था मेरे पास वो तो था ही ये। सो आई एम गेटिंग n² + 3n + 1 by 2, राइट। n नंबर n मेरे पास था 1998। तो इसे ऐसे लिख लेता हूँ, n² + 2n + n² + n + 2n राइट, स्क्वायर कर देता हूँ फिर को अच्छा लगेगा आपको देखने में। n + 1 the whole square by 2 plus n by 2, right। n की वैल्यूज यू हैव टू पुट 1990 जो भी है। वन क्वेश्चन वाज अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन, ये मैंने 8th क्वेश्चन दिया था जो a was given as -1 + 3x upon 1 + x minus √ mod x - 2 plus √ 2 minus mod x, whole thing divided by 2 minus x is in the mod. How many of you able to crack this question? कितने लोगों के हो गए? Raise your hand. Yes, Aditya, could you explain this? Yes, sir. So we have the options है जहाँ पर रूट ऑफ मॉड x - 2 आता है, तो सर वो हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी रहनी चाहिए। तो फिर सर आया था x is greater than equal to 2 एंड फिर सेकंड से आया था x is less than equal to 2। तो सर मॉड x की वैल्यू ये दो आ रही थी, तो सर x + -2 ग्रेटर देन इक्वल टू +-2 एंड लेस देन इक्वल टू x - 2। लेकिन सर इफ वी टेक x as 2 then we get 2 - x, which is wrong sir, क्योंकि नंबर 0 से डिवाइड हुआ 1/0 इज अनडिफाइंड, तो सर x की वैल्यू -2 ही लेनी थी। तो फिर x इज इक्वल टू -2 लेकर सर सॉल्व किया तो -7 by -1 आ रहा था सर। तो फिर -7 2003 में 2000 को 4 से डिवाइड किया और फिर 343 आया सर 7 क्यूब करके। देखो, मतलब मेन है इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। फर्स्ट थिंग, सी अंडर रूट के अंदर ये क्वांटिटी गिवन है, तो mod x - 2 greater than equal to 0 होना चाहिए, राइट। अंडर रूट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव एंड 2 minus mod x को भी greater than equal to 0 होना चाहिए। From this you are getting mod x greater than equal to 2, from this you are getting mod x less than equal to 2। एक तरफ आप बोल रहे हो कि mod x को 2 से ग्रेटर होना चाहिए, एक तरफ आप बोल रहे हो लेस देन होना चाहिए, तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि mod x को 2 के इक्वल होना चाहिए, राइट। अगर mod x 2 के इक्वल है तो ऑब्वियसली आई नो कि x की वैल्यू इधर +1 +2 और -2, राइट। +2, जस्ट अ मिनट कृष्णा, x की वैल्यू प्लस और -2 होगी, राइट। अब अगर x की वैल्यू प्लस और -2 हो जाती है मेरे पास, तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसमें एक बहुत ही like it's given 2 - x. If we'll put x is equal to 2, this will be 1/0. That's not defined. Means if we have to solve, or this question will be solvable only if, right, this value will not be equal to 2. So we have to put x is equal to -2. So a is equals to -1. This will be 0 only, right? At -2, this will be 0, right? So this -2 -1 -6 upon -1 will be 7 only. Okay. Okay. Yes, sir. Yes, Done. Done. Look, and this question, what we have taken, this is t², and this in the question itself it was given as t². So under root of this will be, right, t only, and this is t upon 2. Now you have to solve this anyhow. 1998 you have to put the value. Okay, yes, ma'am. हाँ,
what is this? X minus 2. Shikhar, what you asking? Yes, Shikhar. सर मॉड x माइनस 2 में आपने माइनस 2 पुट किया. अरे ऊपर जीरो हो गया ना हाँ वही बेटा, तो जीरो हो जाएगा ना. ऊपर जीरो हो गया ना, यहाँ पर माइनस 4 का मॉड होगा, ऊपर जीरो हो गया तो 0/4 का क्या करेगा आंसर? हाँ समझ गया. जीरो. जैसा ने सर इसके जो आपने ऊपर वाला क्वेश्चन किया है ना सर, ऊपर वाला इसकी सर क्वेश्चन अबाउट दिस. यस सर. सो उसमें कैन यू एक्सप्लेन द टी पार्ट? आई एम नॉट गेटिंग दैट. ये मैंने 1998 जो है उसे n ले लिया, तो दिस इज राइटिंग n +1 n+2 n+3 +1/4 क्वेश्चन कन्वर्टेड टू दिस, राइट. n को n+3 फैक्टर के साथ मैंने मल्टीप्लाई किया एंड n+1 को n+2 फैक्टर के साथ मैंने मल्टीप्लाई किया. यस सर. राइट. अब ये दोनों फैक्टर के साथ जैसे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो व्हाट आई एम गेटिंग कि यहाँ जो मेरे पास आ रहे हैं, इसको सॉल्व करने के लिए आई एम टेकिंग n² + 3n+1. इन दोनों का जो मिड पॉइंट था, उस मिड वाले को +1 को मैंने t एज्यूम कर लिया. यस सर. Right. So what I'm getting t, this t, so this will be t minus 1 and this will be t plus 1. यस Right. सर. And plus 1 ये given था, तो t square minus 1 plus 1 will be t square. So you this is only, this is the value that's t square only, right? T square means n² + 3n plus this, and 4 was given there, so I put the But value. sir, t was 1 na. हाँ. The value of t was 1, so how t square became something else? What t square 1? Sir, you told that the value of t is 1, so I'm not getting that. When I said t is 1. Yes sir. Arey, yes sir, what? When I said t is 1, t is 19, t when you have to put the value of n, then you will get t, na? Okay sir, now I got it. 1998 square plus 3 into 1998 plus 1. Yes sir, yes sir, yes sir. Right. 20th. Mod of x plus 2 is equal to 2x plus 2 is in the mod. Right. Obviously, mod both sides. One of the simplest way to solve this is squaring both sides. Four cancel out. 3x square plus 4x is equal to 0. Either x is equal to 0, right? So you are getting x is equal to 0 or x is equal to both the numbers you are getting, right? Sir, Minus So minus 4/3. 4/3. Either x is equal to 0 or minus 4/3. Right? 0 or minus 4/3. sir, option was not good. Sir, option was not given -4/3 or 0 वाला. Yes sir. एक ने बोला तो हो गया, एक ने बोला ना, देन ऑब्वियसली ना, तो सभी के बोलने का वो नहीं है. मैं उसमें चेक कर लेता हूँ ना, तो इसमें आप लोग अपना प्लस, अगर आपके आंसर मैच नहीं करे, +5 मार्क्स कर लो, नो प्रॉब्लम. सर और अगर वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया होगा तो 0. सर क्योंकि अगर रॉन्ग आंसर मतलब आंसर सर रॉन्ग आंसर तो नेगेटिव Wrong मार्किंग answer. मिलेगा, हाँ, इसलिए मैंने sir. अटेम्प्ट ही नहीं किया था. रेज योर हैंड ना. सर रॉन्ग आंसर होगा और नेगेटिव मार्किंग मिलेगा, ये सोच के अटेम्प्ट नहीं किया. चलेगा बेटा, +5. अगर आपने Okay, sir. नहीं किया तो ऑब्वियसली यू आर नॉट एबल टू सॉल्व, देन ओनली आई एम सेइंग दिस ना. एंड बी जेन्युइन ना, गड़बड़ काम मत करना. हाँ सर. Okay. Got this? Yes.
अभी मैं ले लूंगा, आप लोग के मार्क्स भी सबके ले लूंगा, नो प्रॉब्लम। मैंने क्वेश्चन भी कुछ ऐसे दिए थे जो थोड़े टफ हो, राइट। a अपॉन a माइनस बी इंटू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस 4ab प्लस 4b स्क्वायर अपॉन a 2b माइनस, राइट। यस कृष्णा। सर वो उधर a अपॉन a माइनस 2 भी है। हाँ कर देता अभी। a अपॉन a माइनस 2 इंटू प्लस a minus 2b a square minus 4ab plus 4b square upon a into 2b minus a, right? And this is a beautiful arrangement of numbers and like use of mod, right? You have to be careful in this, obviously. How to solve this, right? So look, it's what's given in the question. A upon a minus 2b. Okay, we can't solve this. So अपने आप में solve है, right? This is the numerator part is a minus 2b the whole square upon a 2b minus a is in number, right? If I'll cancel out this a minus 2b whole square and cancelling with this, so one minus sign would be there. So what I'm getting, a upon a minus 2b into under root of 2b minus a upon a, right? Samarth, you want to ask anything? Krishna, you want to ask anything? Yes, sir. Yes, Yes, beta. sir. Sir, what if I write this term, second term, root of a minus 2b the whole square upon upon a minus 2b? Mhm. Can I write that a minus 2b upon root of a into 2b minus a? Mhm. So one a minus 2b and one a minus 2b from these two numerator and denominator will get cancelled, sir. Just think again what you are saying. Think again what you are saying. Na? 30-second time for you. A upon a minus 2b. See, ये एक बड़ा सा गड़बड़ वाला है, मतलब पहले मैं सॉल्व कर दूं फिर आता हूँ एक एक करके ना, क्योंकि बहुत सारे इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग, बहुत सारी नई कहानी आ जाएगी, राइट। सी now we want to cancel this and this and this and this, so we have to make sure this is positive or negative, right? अगर वो पॉजिटिव है या नेगेटिव ये जब तक नहीं मालूम we can't cancel the thing, right? We can't cancel out the numbers, right? So first case, what I'm thinking, okay, let's suppose 2b minus a upon a must be greater than 0. If this is greater than 0, so both will be positive. If both are positive, so obviously a will be cancelling out with this a and 2b minus a will be cancelling out with this, right? So one minus sign we have to take common because this is a minus 2b and this is 2b minus a. So in answer, we have to write down in terms of like under root of a upon 2b minus a with minus sign, not plus sign. It's hanging, just a minute. That I'm saying.
कि like if it is 2b minus a upon a greater than 0, this number is positive. If I'm saying it, I'm claiming this is positive, so this number is positive, right? So we have to make this positive, so I have to take a minus sign, right? So I'm taking this minus sign here, so I'm getting, this is the answer. Getting this point, right? This is the first case, right? Second case, may be possible कि 2b minus a upon a less than 0. ये टेस्ट के साथ में मैं ये आपको बताना चाह रहा था कि देखो कितनी छोटी छोटी माइन्यूट चीजें भी हैं जो आपको गड़बड़ करवा सकती है। जब तक ये ना हो तब हमें पता करना बहुत मुश्किल होता है, राइट? अगर ये मैंने लेट सपोज आई एम सेइंग कि दिस इज a upon 2b minus a is negative, राइट? सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? मतलब ये रहा कि एक नंबर मैंने ये नेगेटिव है तो a upon a minus 2b will be positive, राइट? तो ये नंबर जो है गिवन a upon a minus 2b, this is positive, and 2b, since 2b minus a is negative, so a upon a minus 2b will be positive, right? एंड अगर मेरे को ये नंबर को लिखना है दो पार्ट में, तो आई कैन रीराइट दिस एज a upon a minus 2b, right, into a upon a minus 2b, right, into this is negative, so under root of a upon 2b minus a. तो ये तो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, राइट? ये अगर अंडर रूट के अंदर नेगेटिव है, एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो मुझे रियल नंबर मिल ही नहीं रहा है। मतलब थर्ड केस ये हो सकता है कि a भी लेस देन 0 हो और 2a माइनस b भी लेस देन 0, दोनों पॉजिटिव की जगह दोनों नेगेटिव नंबर हो जा रहे हो। यहाँ पर आपके सवाल का जवाब, राइट? एक छोटा सा मैं वर्किंग करके दिखाता हूँ, देखना कितना मजेदार सा चीज आएगा ना। अपने पॉइंट को रखने के पहले रूट 6 इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू 3 is equal to under root of minus 2 into minus 3 is equal to under root of minus 2 into under root of minus 3. Under root minus 1 is I. This is I into root 2, I into root 3. This is I square into 2 into 3 is I square is minus 1 root 6. We have started with plus root 6 and ultimately I'm getting answer minus root 6. ये कौन सा स्टेप ऐसा लगता है जिसमें मैंने गड़बड़ कर दी? Which step is there? First, second, third, fourth, fifth, sixth. Write down in chat which step you feel I did mistake. Without question mark. Very good. Third step, right? अगर मेरे को नेगेटिव नंबर है एंड ओपन अप करना है, राइट? सो व्हाट इज द थर्ड स्टेप, करेक्ट स्टेप? तो -1 into this is the correct step. वो आस्किंग, कौन पूछा था? कृष्णा था, समर्थ था, किसने पूछा था वो क्वेश्चन? I guess you are understanding, beta? Yes, sir. You are understanding now? Yes, so sir. means if product of two negative numbers are there ना, so you can't, मतलब बचपन से हम लोगों को ये पढ़ाया गया अंडर रूट ए बी इज अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी, राइट? बट दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू. ये फेल हो जाता है. कब ये फेल हो जाता है? ये तब फेल हो जाता है व्हेन ए बी बोथ आर नेगेटिव. दोनों में से एक नेगेटिव एक पॉजिटिव और बोथ आर पॉजिटिव, देन इट्स ओके. बट इफ आई एम सेइंग both the numbers are negative, so this would be wrong.
अब ये बताने का मैं कितनी बार भी बता दूं, ये बताने का सबसे अच्छा तरीका होता है एक बार एग्जाम में गलत करवाने। अगर एग्जाम में मैंने गलत करवा दिया तो ऑब्वियसली फॉर दैट से वन माइनस साइन विल बी देयर, तो आपके आंसर तो वही आए होंगे बट विथ माइनस साइन। ओके एवरीवन, सर करेक्ट आंसर इज नेगेटिव वाला ना, तो आपने पहले स्टेप। हाँ right. Next 18th, x minus 1 the whole square, x minus 10 the whole cube, whole thing divided by x minus 5 to the power 7, x minus 15 to the power 9 greater than 0. Right. So now these type of question, one of the simplest question. तो कभी टफ हुआ करता था, मेरे को लगता है now these question are one of the simplest question. 1 coming 2 times, 5 coming 1 time, 3 times 10 and 15, right? So we are going with positive, negative, positive, negative, and this, right? Only greater than 0, so everything will be in open set, right? So 5 to 10 union 15 to infinity. How many of you got this answer? 15 to infinity. How many of you got this answer? Write down please. Very good, very good, very good. Hopefully everyone. Right, second is x minus 1 whole cube, x minus 10 upon x plus 2 to the power 7, x minus 15 to the power 7. I guess यही question था, 9 I guess. Huh? Then 0. Right, again a simple one. So few numbers are minus 2 one time, 1 one time, 10 and 15. So this is coming as positive, negative, positive, negative, positive. What we required this as the number as an answer minus infinity to minus 2, union 1 to 10, union 15 to infinity. How many of you got the answer? Okay, very good, very good. Next question I'm going to discuss is, question is given root 2 plus root 3 minus root 5 upon root 2 plus root 3 plus root 5. By you have to rationalize this. Now, rationalize करने इसको. So we know that this will be double rationalization, right? Double rationalization. So multiply this with root 2 plus root 3 minus root 5, root 2 plus root 3 minus root 5, right? So if root 2 plus root 3 is a and root 5 is b, so this is a minus b the whole square. So this is root 2 plus root 3 minus root 5 the whole square upon this is root 2 plus root 3 the whole square minus 5. So what I'm getting? This is root 2 plus root 3 the whole square plus 5 minus twice of root 5 into root 2 plus root 3. Whole thing divided by 5 plus 2 root 6 minus 5. 5 cancel out. Right? Expanding this 5 plus 2 root 6
plus 5 minus 2 root 10 minus 2 root 15, whole thing divided by 2 root 6. Okay. So I'm getting 5, 5, 10. So 2 you can cancel out. Plus 2 root 6 minus 2 root 10 minus 2 root 15 upon 2 root 6. You have to write down the answer. 5 into 1 by root 6 plus minus root 5 by root 3 minus 5 by root 2. You can multiply with, it's a simple one, right? Root 15 by 3 minus root 10 by 2. I guess everyone getting this? ABC. And यहाँ भी root 6 से you can multiply the number 25 minus 2. So this will be root 6 by 6. Right? Yes, Harshvardhan. So, sir, the answer is 31, right? Beta. Yes, But it's sir. given 32. 32. That's why I asked. A, B, C, D भी था क्या? No, Yes. sir. Yes, 31 is coming, beta. सर न्यूमरेटर में आपने क्या किया 5 प्लस 2 रूट 6 प्लस 5 वो कहाँ से आया कैलकुलेशन किया बेटा. अच्छा माइनस अंदर लेके हाँ समझ गया कैलकुलेशन किया सिंपली. Yes, sir, समझ गया. कैलकुलेशन किया, कुछ खास नहीं किया. Yes. Right? So answer is 31, right? If you have written 31 or 32, just you have to check, right? यस सर Beautiful ना? बड़ा अच्छा सा नंबर आया. यस्मित. Yes, यस्मित. सर आंसर 31 है ना? 31 है बेटा. फिर से एक बार मैं बोलूं, आंसर इज 31. अगर उसमें नहीं था तो यू हैव रिटन द 31, तो योर आंसर इज करेक्ट. यू हैव टू ऐड योर +5 मार्क्स. ओके सर. यस सर Okay, sir. शिखर, समर, हर्षवर्धन, Yes, sir. जसमीत, सबके हैंड ओवर मैं कर दूं. हो गए क्वेश्चन तो? यस सर सब मैंने कर दिया. कोई नहीं. नाउ इट्स गुड. हाँ, अच्छा अरेंजमेंट नंबर का. एंड सी, इतने कैलकुलेशन भी अब हो जा रहे हैं. ये सबसे इम्पोर्टेंट है हम लोग के लिए, राइट? मैंने मतलब प्यार से बहुत भरपूर तरीके से ये दिया था. वो काफ़ी ग्लिच भी हो गया था कल आप लोगों के एग्जामिनेशन के समय. दैट्स द रीज़न ये आंसर के कुछ गड़बड़ आ रहे हैं. द टाइम ऑफ एग्जाम ओनली कुछ मिक्सअप हो गए थे आंसर्स क्वेश्चन, बट वी हैव टू गो थ्रू दिस. ये सब लाइफ में चलता है, राइट? सो नाउ x and y is given. Why this question? ये देख लेता हूँ. मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट करूँगा थोड़े से कुछ काम करने के आप लोगों को, क्योंकि ये क्वेश्चन होना चाहिए था. You have to get x to the power 4, y to the power 4, and x plus y to the power 4, right? So first get x, since we know that x into y is 1, right? So get x and y in simplest form, means we can write this as root 7 plus root 3 the whole square upon 4, and y is root 7 minus root 3 the whole square upon 4. ये दोनों numbers मेरे पास आ रहे हैं, right? So x is 7 plus 3, 10 plus 2 root 1, y is upon 4,
right? 10 minus 2 root 21 अपॉन 4, राइट? ये दो मेरे पास x एंड y गिवन है, खुद से ट्राई करें आप लोग, फिर मैं बताता हूँ। Very good, very good. Now to calculation part only, right? So you can see there, if you'll add x plus y, both the numbers, right? You're adding the number, what you are getting, 10 by 4 plus 10 by 4, 20 by 4 is 5 only. And x into y is given as 1 only, right? Now we have to find both the values, x plus y to the power some number 4. So obviously x plus y to the power 4 is 5 to the power 4, right? 625, right? And x to the power 4 plus y to the power 4, I can write x plus y whole square is equals to x square plus y square plus 2xy, right? So this is x plus y is 5, so this is 25 minus 2 is equal to x square plus y square, right? This x square plus y square is 23. Right? So what is the value of x to the power 4? So squaring both sides again, x to the power 4 plus y to the power 4 plus 2 x square y square is equal to 529 minus 2. Okay, so this is 527 and that was 625. 1152, I guess. This is coming now. Yes, Smith. Sir, can you do 12th question? This one was the question. Only the trick was to find value of x plus y and x square plus y square. The easiest way you can do.
Sir, 12th question. This was 12. ये था क्या 12? No, sir. Okay, everyone. Sir, 12th question ये नहीं था. बेटा क्वेश्चन भेज दो प्लीज ना. Yes, sir. ये कर दूंगा. Now n is equals to root 15 plus root 35 plus root 21. किसी के भी और भी जो भी डाउट्स होंगे प्लीज send it to me. Root 7. Is equal to root b plus root c upon 2. Okay, done everyone? हाँ, मैं देखूँ इसे. See. So this is again arrangement of number, right? Irrationality में यही है कि ऐसे अरेंजमेंट रखें जिसमें आपको थोड़ी सी परेशान किया जाए and you have to crack this. Root 5 अगर मैंने कॉमन लिया जो मैंने डॉट्स दिए हैं, root 3 plus root 5 plus root 7 मैंने कॉमन लिया, root 5 plus root 3, right? Numerator and the denominator is still the same, right? This I can write root 5 plus root 3 plus root 7 plus root 5, right? Still the number n I can rewrite as root 5 plus root 3 is common out, plus root 7 plus root 5, this into this, upon root 5 plus root 3 plus root 7 plus root 5. Divide by root 7 plus root 5 and we are getting 1 upon root 7 plus root 5 plus 1 upon root 5 plus root 3. Multiply with the conjugates, right? This is coming as 2 upon root 7 minus root 5 plus multiply with the conjugate root 5 minus root 3. Root 5 cancel out. So what I'm getting 2 upon root 7 minus root 3 or multiply with the conjugate. Directly I'm writing root 7 plus root 3 upon 4 plus cancelling out with this. सर Yes. सर वो आपने जो ब्राउन में लिखा था वो वाला स्टेप्स नहीं उधर से नहीं समझा. बेटा ऊपर प्रोडक्ट है ए बी, नीचे है ए प्लस बी ना, तो ए इंटू बी से डिवाइड किया तो व्हाट आई एम गेटिंग इज हियर ना. आएगा भाई. सर लास्ट स्टेप में आपने इज इक्वल टू लिखा है. अच्छा, मल्टीप्लाई नहीं किया. यस मैंने आपको व्हाट्सएप पे भेजा एक और क्वेश्चन.
anyone can help me out on this? कोई मेरे को हेल्प करेंगे इस पे? Yes, Hasvardhan. Yes, sir. Please tell me. So in the first term, we can take it as x. Let assume that the answer is x. Yes. Then we can write the whole root 2 into x. Yeah. Very good. From here we can get x equal to 0 and x equal to 2. 0 is not. In the second term, the same thing, we can assume the answer as x and whole root 2 plus x. y ले लेता हूँ बेटा, नहीं तो फिर ये आएगा Okay. कि आपने x ले लिया तो दोनों सेम नहीं आ रहे हैं. Okay. This you are saying? Yes, sir. So y cannot be y. Yes, sir. So both the is it okay? Yes, sir. Yes. सर y नॉट इक्वल टू -1 वो रूट में है, वो कि नहीं होगा ना? मैंने वहां तक किया, लास्ट स्टेप तक किया, उसके बाद -1 को और 0 को टर्मिनेट नहीं किया. Okay. सर क्वेश्चन 8. Send question. जो भी क्वेश्चन आप लोग मैंने आपको व्हाट्सएप पे भेजा. हाँ व्हाट्सएप किए हो तो मैं 100% आपके क्वेश्चन को अभी इंटरटेन करूंगा, राइट? सेंड क्वेश्चंस. x less than 2. Under root of this is nothing but x minus 2 का mod, and this is either 3 minus x or x minus 3 का mod. Both the way this is same. Okay. X less than 2, so this will be 2 minus x. X less than 3, so this will be 3 minus x. So this is 5 minus 2x. Whose doubt is this? इसका doubt था ये. ये जो क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया सिखा, व्हाई यू आर सेंडिंग अगेन एक क्वेश्चन? सर समझ में नहीं आया, मुझे वही बोलना चाह रहा था. अभी तो डिस्कस किया था मैंने. हाँ मुझे समझ में नहीं आया, आप वही दिखा दीजिए. समझ में आया? हाँ, this was the question ना? Yes sir. Yes, tell me बेटा. चलो मैं एक बार फिर कर दूँगा, हमारे लिए मैं एक बार फिर से कर देता हूँ, ठीक है? और आप जो ये रूट ए बी वो पढ़ा रहे थे वो भी बोल दीजिए, वो भी समझ में नहीं आया. छोड़ दिया, फिर से पढ़ा रहा तो फिर से दूसरे तरीके से कुछ बताऊंगा ना. हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन इज x is equal to under root of c plus 2 minus under root of c plus 1 upon under root c minus under root of c minus 1. Y is equal to under root of c plus 2 minus under root of c plus 1 upon under root of c plus 1 minus under root of c. Z is equal to root c minus root of c minus 1 upon root of c plus 2 minus root of c plus 1. Okay? Yes. Increasing and decreasing order में मेरे को चाहिए कि which one is greater than y, right? So who is helping me? Yes, Aditya, tell me. सर दो तरीके हो सकता है सर. मैंने एग्जाम में तो सर वैल्यूज पुट इन की थी, लेकिन सर जब कर रहा था एक और बार अटेम्प्ट कर रहा था तो सर अगर हम लोग ऊपर नीचे just a minute. yes
सर अरे मैं अपने बोलने के लिए जस्ट मिनट किया तो कोई दूसरा बोल गया मैं अपने बोलने के लिए टाइम मांगा था, तेरे को भी देता हूँ। सी दैट्स अ वेरी गुड थिंग। इफ यू आर डूइंग क्वेश्चन और एग्जाम में क्वेश्चन है तो 100% यू कैन पुट द वैल्यूज। वो वैल्यूज पुट करने के बाद यू विल गेट द रिलेशन, जो भी रिलेशन आ रहे हैं, राइट। मैंने एक्स सी की वैल्यू 2 रख दी, 1 रख दी, 0 रख दी, -1 रख दी, देन यू विल गेट द रिलेशन की एक्स वाई जेड की वैल्यूज क्या आ रही है, बिकॉज दिस इज गिवन इज कॉल्ड आइडेंटिटी, दिस इज ऑलवेज ट्रू। अगर इस तरह के रिलेशन गिवन है जो ऑलवेज ट्रू है, केवल ये ख्याल रखना कि सी को 0 लेना इज नॉट गुड। क्यों? क्योंकि सी इज इक्वल टू 0 लेने पर एक जगह पर √-1 आ जाएगा, राइट। जो नॉट डिफाइंड वाली चीजें हम ना ले पाए, उसके अलावा वी कैन डू द सेम, राइट। तो अच्छी वैल्यूज रहे कि अगर मैं 1 ले लूँ तो बहुत सारे जीरोज भी मिल जाएंगे, सॉल्व करना भी आसान हो जाएगा, राइट। हाँ, शायद कुछ बोल रहे थे बीच में, प्लीज टेल मी। यस सर, फिर जब रात में एक और बारी अटेम्प्ट कर रहा था तो सर अगर ऊपर नीचे दोनों के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं सर, तो दोनों जगह डिनोमिनेटर, सर तीनों जगह एक्चुअली डिनोमिनेटर सेम आ रहा है। एक्स और वाई में अगर कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया तो डिनोमिनेटर सेम आ रहे थे सर। आएगा तो फिर क्या देख लेते हैं ना। हाँ सर, मल्टीप्लाई करने पर c प्लस √(c-1) अपॉन √(c + 2 + √(c+1). Second में, after solving this, what you are getting? √(c+1) plus √(c) upon √(c + 2 √(c+1). Okay, right? In this, सर स्क्रीन शायद फ्रीज हुआ है। अभी मिल जाएगा बेटा। हाँ हाँ ठीक हो गया। हो गया ठीक? नहीं हुआ अभी? नहीं सर, नहीं होगा। हाँ नहीं हुआ, नहीं माउस हिल रहा था। ओके, राइट। यहाँ से फर्स्ट 2 में तो मेरे को साफ दिखाई दे रहा है कि क्या है, राइट। जो नंबर बड़ा होगा तो √(c + √(c) ऑलवेज ग्रेटर देन दिस, राइट। यहाँ से तो ये मेरे को मिल गया कि ये वाली क्वांटिटी जो मेरे पास है इससे तो बड़ी होगी, राइट। थर्ड वाली क्वांटिटी इज वेरी गुड। अगर यहाँ मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ऊपर जो क्वांटिटी न्यूमरेटर में जो क्वांटिटी आ रही है या वो डिनोमिनेटर से बड़ी है, राइट। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है तो ये तो 1 से ही बड़ा हो गया। और ये नंबर अगर ध्यान से देखो तो ये 1 से छोटा नंबर है, ये भी नंबर 1 से छोटा, और इन दोनों को मैंने कंपेयर किया तो ये नंबर बड़ा निकला आया था। मतलब y मेरे पास ग्रेटर देन x था ही था, एंड z तो सबसे बड़ा है तो z मस्ट बी ग्रेटर देन y मस्ट बी ग्रेटर देन x। ध्यान से अगर सोचो तो हमने कोई वर्किंग रखा ही नहीं, देख के ही आपके आंसर आ गए। हाँ, क्वेश्चन को डराने के लिए इस फॉर्म में दिया हुआ था कि थोड़ा सा लगे कि कुछ खतरनाक सा जा रहा है। ओके, यस सर। आपने रैशनलाइज किया क्या डिनोमिनेटर को फर्स्ट x और y में? हाँ बेटा, सभी को रैशनलाइज किया। यस, और सभी में 2 - 1 1 - 0 - 1 सब 1 1 1 आ गए। यस। यस देवांश। सर x और y को रैशनलाइज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों का न्यूमरेटर सेम है और चलेगा। √(c - √(c-1) दूसरे वाले से बड़ा है, इसीलिए वो छोटा रहेगा वैल्यू। कैसे पता ये बात कि कौन बड़ा होगा? दोनों क्वांटिटी में कौन बड़ा होगा ये कैसे पता आपको? इफ आई एम राइटिंग, दो क्वांटिटी में लिखता हूँ आपको ना इसको तो हम लोगों ने क्वेश्चन भी किया था। √17 - √16, √16 - √15, which one is greater? √16 - √15। विदाउट कैलकुलेशन तो पता नहीं चलेगा ना। ओके ना,
a upon a minus 2b into under root of a minus 2b का होल स्क्वायर अपॉन a 2b माइनस a। फिर से कर रहे हो सर ये सम? हाँ बेटा, सभी लोग कंफर्टेबल हो जाओ, यही है मेरी। Why asking question again and again, Tanis? See, so first I'm coming with, I have written under root AB is equal to under root A into under root B is true for AB either greater than 0 or at least one पॉजिटिव, या तो कम से कम एक पॉजिटिव हो या दोनों पॉजिटिव हो, तब के लिए ये ट्रू है, राइट। इफ बोथ आर नेगेटिव, अगर दोनों नेगेटिव हो तब के लिए अंडर रूट ए बी जो होता है वो ये होता है, राइट। मैं ये आपको एज ए फॉर्मूला मैंने बोला कि ये दिस यू हैव टू रिमेंबर। ओके एवरीवन, राइट? Yes, sir. Now starting the question. See, so case first, when a into 2b minus a both positive, दोनों positive, so we can rewrite this as, ये जो है उसे लिख सकता था a upon जो मेरे पास given है a minus 2b into a minus 2b is in the mod upon a under root this will be 2b minus a, both positive, a भी positive है, 2b minus a भी positive, right? So 2b minus a positive है, so we can rewrite this as, ध्यान से, a upon a minus 2b, but 2b minus a is positive, so a minus 2b I can write 2b minus a upon root a upon 2b minus a. This will be we can cancel out this, so I'll write this thing something like this, and cancelling this I'm writing this. So what I'm getting, root a under root of 2b minus a, taking minus sign from this out, this is 2b minus a. Again cancelling out this under root a upon under root of 2b minus a. What is the problem? सर समझ गया। समझ गया। Anis, okay. किसी के कोई डाउट बच गए हों? सर मुझे होमवर्क में एक डाउट है। भेज दो बेटा प्लीज। हाँ, मैंने एक सेकंड। होमवर्क का भेजा हुआ है सर। एक बार फिर से भेजेंगे बेटा, बहुत सारे मैसेज आ गए हैं अभी तक में, सब ऊपर नीचे हो गया होगा, जल्दी से सब से भेज दें। सर माइनस साइन कहाँ से आया पहले सम में? कहाँ पर बेटा? सर एकदम लास्ट स्टेप माइनस साइन। ये वाला a minus 2b minus a लिखा ना? ओके सर, हाँ समझ गया। ओके, कितने कितने मार्क्स हैं ये तो बता दो जल्दी जल्दी, राइट डाउन इन चैट ना। मैंने करेक्शन करवा दिया, उसके बाद कितने कितने मार्क्स है जल्दी से राइट डाउन फास्ट। 80 के थे ना?
जल्दी जल्दी, टेक योर टाइम, 2 मिनट का टाइम ले सब लोग। सर 84 था। सर 84 था ना। एक बच्चे, अच्छा 21 क्वेश्चन हुए ना। वेरी गुड। जहाँ जहाँ -1 हुआ वहाँ पर +5 करना है ना। +5 करना बेटा। हाँ ठीक है सर। एंड एवरीवन हैज टू राइट ना, सब लोगों को लिखने हैं, राइट। आदित्य सिंह, ये हाथ क्या कर रहे हैं तेरे? अरे सॉरी सर, नीचे करना मैं रख लूंगा तेरे हाथ। वेरी गुड योजित, वशिष्ठ वेरी गुड, वैसी वेरी गुड। यार मेरे को कर दो, एवरीवन को करोगे तो अच्छा नहीं लगेगा, दूसरे बोलेंगे कि यार शो ऑफ कर रहा है। अखिल वेरी गुड। तो हम सब्जेक्टिव के मार्क्स भी ऐड करके लिखोगे आप। यू हैव टू ऐड योर सब्जेक्टिव मार्क्स। हाँ, उसके भी आंसर मैंने बता दिए हैं। ओके सर, वो ऐड नहीं किए। सर मैंने आपको अभी भेजा है जस्ट डाउट। और मार्क्स जल्दी। वाह यार, बड़े अच्छे अच्छे मार्क्स ले आए तुम लोग। मैंने तो बहुत टफ कोशिश की थी पेपर देने की। मैंने तो रखा था कि 50% से ऊपर ना ला पाए। कुछ लोगों को ऐड करने भी नहीं आता है, नंबर ऐड भी नहीं कर पा रहे। क्या देखना है लिखित? यस लिखित। जिस तरह का पेपर मैंने किया था ना, मतलब मैंने ये रखा था आप लोगों का कि 32 to 36 मार्क्स एंड अबव इज अ गुड मार्क्स। आप लोग अपना अपना एक बार चेक करके देखें कि सर 32 वहाँ 32 33 जो मार्क्स आ रहे हों, एंड मतलब 30+ मार्क्स इज अ गुड मार्क्स, मतलब 30+ आने चाहिए किसी के भी। मैंने ये रखा था, मैंने अंदाज लगाया था।
कि काफी सारे क्वेश्चन मैंने एकदम नए दिए थे, मैं दिखाना भी चाह रहा था। What test is this? ये क्वेश्चन है ना, ये हुई बात। हाँ You सर। nailed it. What question है? What test is this? ये किसका? लिखित का। क्या हो गया लिखित? तेरे को पता ही नहीं चला टेस्ट का क्या? कोई नहीं बेटा। सर मैंने आपको व्हाट्सएप पे एक मैसेज भेजा था। क्या कर रहे हो? पर्सनल मैसेज? हाँ सर। 1/2x था I guess। क्या मैसेज आया है यार मेरे को? सब तो क्वेश्चन वाले मैसेज है, कोई पर्सनल मैसेज तो है ही नहीं। सर मैंने भेजा है करके कि साइट पे मुझे आधे टेस्ट नल करके दिखा रहा है और मैं अगर ओपन करने जाऊँ तो फिर एरर दे रहा है मुझे। एक बार मेरे को भेजो उसकी फोटो। सर भेजा है हाँ मैंने। सर, नल तो हाँ दिखा सर, रहा था। मेरा भी दिखा रहा था सर मेरा भी दिखा रहा है। सर, बट मेरा पहले के एग्जाम से दिखा रहा है, अभी के नहीं। कल तक सब सही था बट आज जब ये वापस मार्क्स देखने गया तो सब नल दिखा रहा था। अच्छा, तो वो अपडेटिंग चल रहा है बेटा, इस कारण से अपडेट कर रहा हूँ। वो कल ही अपडेट करना था, उस कारण से ही गड़बड़ हुआ था। आप लोगों का जो टेस्ट गड़बड़ हो रहा था ना, उस कारण से गड़बड़। टेस्ट में नहीं दिखा रहा होगा, टेस्ट के बाद दिखा रहा होगा। जिस समय आपका एग्जाम चल रहा था, इट वाज मेरी क्लास चल रही थी, उस समय प्रॉब्लम शुरू हो गया था। इतना भयानक मुश्किल हुआ। पेपर पूरा का पूरा मेरे को, मैंने जो सोचा था पेपर दिया था, पेपर वो पूरा चेंज करना पड़ गया। एक बार फोटो भेजना मेरे को। तो वो आरएमओ का टेस्ट और वो सब जो सब नल दिखाने लग गया है। एक बार अभी जो आपका था वो पेपर भेजना मेरे को, जो नल दिखा रहा है वो फोटो लेके मेरे को भेजना प्लीज। सर मैंने व्हाट्सएप पे भेजा है, सेंड करके भी दिखा रहा है, डिलीवर हो गया आपको ऐसा दिखा फिर रहा है। भेज लेना भाई, मेरे पास 100 मैसेज आ जाते हैं, समझता नहीं है बात को यार, मैं कहाँ खोजता फिरूंगा। सर मैंने डाउट भेजा 3 बार। सब भेजा मैंने। हाँ बेटा, ये पुराना बैकअप है, आपको मिल जाएगा पेपर ना। कल वाला पेपर है ना आपके पास, या कल वाला हाँ पेपर सर भी? कल का पेपर तो दिखा रहा है यहाँ पे। सर वो कल वाला पेपर कल दिखा रहा था मेरे को भी बट आज मेरे को दिख नहीं रहा है। आज वो भी नल है और लास्ट जो एग्जाम है वही ये मेजर टेस्ट इंजीनियरिंग और वो मेडिकल वाला ही दिखा रहा है। बाकी टेस्ट का आंसर्स दिखा रहा है। देख लिया मैंने बेटा ना। पुराना बैकअप होगा, इस कारण से है, कोई दिक्कत नहीं। ओके डन। चलो अब मैं डाउट पर आ जाऊं सबके। फर्स्ट डाउट ये मेरे को गिवन है, राइट। ये काफी लोगों के ये वाले क्वेश्चन हो गए हैं, आई डोंट नो क्या गड़बड़ जा रहा है इसमें, देखते हैं। और किसी ने 3 बार अपने डाउट भेजे हैं। किसने भेजे 3 बार डाउट अपने? मैंने सर। तो कौन सा बड़ा काम कर दिया रे? नहीं सर, स्टार्टिंग में भेजा था आपने नहीं देखा, फिर अभी भेजा तो भी नहीं देखा, तो एक और बार भेज दिया। वेट कर ले, अभी तो अभी डाउट डिस्कस करूंगा तब तो तेरा इसका नंबर आएगा। हाँ सर। ध्यान से see, ये क्वेश्चन गिवन है एंड हाउ टू सॉल्व दिस, राइट। सो व्हाट आई एम डूइंग, log 5 to the power 1 by x plus 125 base 5 minus log 6 with the base 10 is equal to 1 by 2x. I guess यही क्वेश्चन को गिवन था। Both the bases are same, so we can divide the number. And 5 to the power 1 by x को थोड़े टाइम के लिए
रुक जाता हूँ, इसके बाद वाले स्टेप पे लेता हूँ, आसान पड़ेगा। log 5 to the power 1 by x plus 125 upon 6 base is equal to 1 by 2x, right? 5 को ट्रांसफर किया, 5 to the power 1 by x plus 125 upon 6 is equal to 5 to the power 1 by 2x. Now ये लाता हूँ इसको पिक्चर पे, 5 to the power 1 by x as t. So what is you are getting? T plus 125 is equal to 6t square. So you are getting 6t square minus t minus 125 is equal to 0. Is it okay? सर 1/2x को आपने क्या लिया? t स्क्वायर 5 1/2x को सर वो t/2 नहीं है। 5 to the power 1 by x को t लूंगा। अच्छा ये 1/2 दिए गिवन था ना, तो सर वो हाँ, रूट t होगा ना? t/2 या तो रूट t। हाँ सर, यस अंडर रूट टी हो गया मेरे पास, राइट? ये अंडर रूट टी है, यहाँ लिख देता हूँ फिर से, राइट? So the simple question this is, right? T minus 6 times under root t plus 125 is equal to 0, right? So t minus 5 root t राइट, 5 to the power 1 by x को यहाँ पर t ले, जो भी हमने लिया था उसी को पुट कर लेता हूँ वापस, हाँ? $25 is equal to 0, right? यही क्वेश्चन में था ना सर? रियल रूट्स इसके नहीं आ रहे, भाई सॉल्व करने का ये था। सर आपने जब लास्ट टाइम होमवर्क दिया था, प्लीज रेज योर हैंड। यस शिखर, आपने जब लास्ट टाइम होमवर्क दिया था आपने थोड़े प्रॉब्लम्स लिख के दिए थे स्क्रीन पे। आप उसी के क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर रहा हाँ, हूँ। आप वो मेरे को भेज सकते हैं, वो डिलीट हो नहीं, गया। अभी तो नहीं भेज सकता, अभी मैं क्लास ले रहा हूँ, अभी कुछ काम में बिजी हूँ, बाद में भेज सकता क्लास हूँ। के बाद भेज सकते हैं। बेटा अभी बात नहीं करूँगा ना, अभी टाइम खराब करूँगा मैं, हाँ? अभी मैं थोड़ा सा क्वेश्चन कर लूँ, राइट? ये आई गेस ये फर्स्ट क्वेश्चन था, हाँ? यही क्वेश्चन शायद पूछ रहे थे। हाँ सर 3 बार वाला यही क्वेश्चन था। हाँ इसके अलावा व्हाट क्वेश्चन यू रिक्वायर्ड? सुनी सेकंड किसी का डाउट है? राइट, राइट, माइनस, ठीक है ना? यस नहीं? सर आपकी साउंड क्लियर नहीं आ रही सर। सर सेकंड वाला दूसरा है क्वेश्चन। सेकंड नहीं किया मैंने बेटा। सर मैंने हाँ, भेजा था, वो प्रूव किया। दैट log 7 to the base 2 is irrational। हाँ अभी हाँ मैं सर उसमें डाउट है। रेज योर आपने हैंड, थर्ड किया। ये ना रेज योर हैंड, हाँ बहुत लोग है ना तो आसान पड़ेगा। log 7 विथ अ बेस, ये बहुत गलत तरीके से आप लोग क्वेश्चन भेज रहे हो यार ना, सडनली भेज दिया, कौन सा क्वेश्चन है वो लिखना ही भूल गए।
right? This is rational or irrational. Log 7 with a base 2. Let this is rational. We can write this in the form of E by Q, right? So this is Q log 7 base 2 is equal to P, or I can rewrite this as log 7 to the power Q 2 is equal to P, 7 to the power Q is equal to 2 to the power P, right? We know that if this is P and Q must be integers, non-zero, Q must not be equal to 0, right? Now, the result is coming as 7 to the power Q is equal to 2 to the power P, right? 7 to the power Q is equal to 2 to the power P. So what we can say, if Q is non-zero, right? So left side जो होगा multiple of 7 होगा, right? और right side होगा वो multiple of 2 होगा. एक इवन का मल्टीपल आ रहा है, एक ऑड का मल्टीपल आ रहा है, तो दोनों कभी इक्वल हो ही नहीं सकते. मीन्स व्हाट वी हैव टेकन वाज रॉन्ग. सो दिस इज नॉट रैशनल, दिस मस्ट बी इरैशनल. यस शिखर, You can explain the last step again. Multiple of 7 and multiple of 2. 7 का पावर कुछ भी लेगा तो मल्टीपल ऑफ 7 आएगा, बोल रहा हूँ. Yes sir. अच्छा हाँ समझ गया. Okay, thank you. किसी का एक डाउट आया है? Whose doubt is this? तुषार, तुषार, किसी का डाउट एक है ये. Find the logarithm of the following with the base 2, और given है 8 to the power 1 by 3. So this is 2 to the power 3 to the power 1 by 3. That is 2. मतलब मुझे निकालना है log 2 with a base 2. That is 1 only. Second given है मुझे निकालना है 2 root 2 with a base 2. 2 root 2 is log 2 to the power 3 by 2 with a base. This is 3 by 2 only. What is problem in this? Okay. Which question, कौन से क्वेश्चन करने को भेजा है? किसी ने मेरे को पूरा का पूरा अपना सॉल्यूशन एंड क्वेश्चन भेज दिया. व्हाट टू डू, कौन से क्वेश्चन मेरे को करने इसमें? कोई भी क्वेश्चन जैसे गिवन है लॉग का 3 to the power x plus 1 2 to the power x minus 1, I guess. X minus 2 3 to the power 2x plus 1 x minus 1, solve for x, right? Taking log both sides, so this is 2x plus 1 log 3 is equal to x minus 1 log 2, right? Base 2 अगर रखूंगा तो यहाँ भी base 2, यहाँ भी base 2, तो log 2 with the base 2 1 हो जाने हैं, right? So I'm getting 2x plus 1 into log 3 with the base 2 is equal to x minus 1. यार बचपन वाला काम करवा रहे हो मेरे से. समर्थ, क्या नहीं समझ में आया बेटा? ये जो क्वेश्चन आपने भेजा हुआ है, ऑल द क्वेश्चन आई हैव टू डू. अरे पहले ये शिखर, x को एक तरफ करें, आप x को एक तरफ ले आए, अपने आप यू विल गेट द आंसर, राइट? समर्थ, एक आप लोग ना कोई क्वेश्चन मेरे को करने हैं इसमें से, आई हैव टू डू.
टेक लॉग बोथ साइड, x के टर्म को एक तरफ ले आओ। एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, 4 to the power x is equal to 5 to the power x plus 1. Yes, Shikhar? Yes, sir. This is your doubt? Yes, sir. What is problem in this? ये दोनों प्रॉब्लम में क्या डिफरेंस है बेटा? ये अभी मैंने जो लिखा और ये लिखा था, कोई नहीं सर, हाँ? कुछ डिफरेंस नहीं है। क्यों फिर से पूछा ये वाला? नहीं, क्या नहीं समझ में आ रहा? मैंने आज पूरा समझ में नहीं आया वो फर्स्ट वाला, तो फिर से पूरा पूछा। समझ में नहीं आ रहा ऊपर में? एकदम अच्छे समझ में नहीं आ रहा। व्हाट इज दिस अच्छा समझ में आ रहा है? ये तो निरमा तू कर दिया, निरमा वॉशिंग पाउडर निरमा। नहीं वो देते हैं ना 99% जर्म्स। सर एकदम क्लियर नहीं हुआ है। अरे व्हाट इज दिस एकदम क्लियर नहीं है? x को सॉल्व करना है, x को एक तरफ लाएंगे, कांस्टेंट एक तरफ लाएंगे, सॉल्व करेंगे। बचपन से सॉल्व करता आ रहा है ये तो। अगर मेरे को इक्वेशन गिवन है, इसे सॉल्व करना है, राइट? मुझे मालूम है कि पावर को मैं सॉल्व नहीं कर सकता क्योंकि और भी डिफरेंट पावर्स है। अगर सेम बेस का पावर रहता तो पावर को मैं इक्वेट करता। तो यहाँ पर क्या करूँ कि पावर को मैं बाहर लाऊं। तो पावर बाहर लाने का एक तरीका है कि मैं लॉग लूँ। मैंने लॉग लिया तो ये आ गया x log 4 इज इक्वल टू x plus 1 log 5। क्या इसमें नहीं समझ में आया? तो इसके बाद क्या करूँ? इसके बाद अब x निकालना है तो क्या करना चाहिए? लॉजिकल बात बोलो कि करना क्या चाहिए। अगर x निकालना है तो x को एक तरफ लाऊंगा, तो x को एक तरफ लाया तो log 4 माइनस log 5 लिख दिया इज इक्वल टू log 5। ये क्या दिक्कत इसमें? log 4 माइनस log 5, log 5 दो कैसे है? कैसी बातें कर रहा है तू? x इंटू log 5 प्लस log 5 कर दिया। हाँ ट्रांसफर। हाँ सर, सॉरी समझ गया। अब इसके बाद का स्टेप क्या करोगे? x की वैल्यू के लिए log 5 अपॉन log 4 log 5। log 5 हाँ। What is problem in this? अब समझ गया। अब क्या पहले ही समझा हुआ था? डर के कारण क्वेश्चन ये स्टार्ट किया कि कुछ गड़बड़ होगा, कुछ नया होगा, ये सोच के। यस सर। हाँ सर। वो x plus 1 log 5 वाला मुझे समझ में नहीं आता। अब समझ गया। सिंपल सा बात है ये तो। नेक्स्ट, राइट? तो एवरीवन इज गेटिंग दिस, राइट? कुछ ना कुछ अपने पास है ही काम को। एंड होप मैंने सबके डाउट्स ले लिए होंगे। जो लास्ट क्वेश्चन थे उसको ले लिया होगा। आप लोगों ने अपने मार्क्स को ऐड भी कर लिया होगा। तो वंस अगेन आप लोग अपने मार्क्स भेजो तो मैं यहाँ पर क्लिक कर दूँ ना। एंड एवरीवन हैज टू सेंड योर मार्क्स, राइट? आपके पास 3 मिनट का टाइम है। स्टार्ट नाउ। ऐड कर लिया मार्क्स, सब कुछ हो गया। नाउ जस्ट अ मिनट ब्रज। यस, और 2 बार मत लिखना। हाँ, एक बार आपने मार्क्स लिख दिया बहुत है, क्योंकि मैं उसके स्नैपशॉट ले रहा हूँ। हाँ, स्टार्ट। डू इट फास्ट, डू इट फास्ट। कम भी आए हो मार्क्स तो प्राइवेट में मेरे को भेजें, मैं हेल्प कर पाऊंगा उसी हिसाब से आपको।
यस हर्षवर्धन। सर जो क्वेश्चन की फोटो आपको भेजी थी उसमें तो बस +4 करना है ना? हाँ उसमें +4 करना बेटा। ओके सर। वेरी गुड। सर हाईएस्ट आए हैं अभी तक मेरे पास, सभी के नहीं आए हैं मेरे पास। हाईएस्ट कितना अब तक? हाँ सर हाईएस्ट सर Raise your hand. Just raise your hand if you want to say something. Please raise your hand. Yes, yes, mate. सर हाईएस्ट क्या है? एक मिनट बेटा। ओके सर। Highest is 76. कोई बात नहीं बेटा, नहीं भी हो कोई दिक्कत नहीं, इन्होंने दिया है उसी के लिए मैं पूछ रहा हूँ मार्क्स। इसका तो नहीं पूछा जाता बेटा। एवरेज जा रहे हैं 40, मतलब मैक्सिमम लोगों के जो हैं 30 मतलब 40 के आसपास वाले हैं, बट काफी लोगों के 60s में भी हैं। ओके चलो आगे बढ़े फिर ना। और किसी के कोई डाउट बच गए हों, वांट टू आस्क एनीथिंग, प्लीज गो अहेड। अच्छी बात क्या रही ना कि इस पेपर को मैंने भी अपनी तरफ से कोशिश किया था, एक थोड़ा टफ पेपर करने का। फील लाइक थोड़ा गड़बड़ रहे पेपर में, you have to struggle with the marks, right? अब थोड़ा सा टाइम मेरे पास बचा है, मैं एक छोटा सा वर्क कर जाता हूँ आप लोगों के लिए, दोनों को थोड़ा बेनिफिट हो जाएगा उससे। See, graph of the function. राइट, अगर मैं ग्राफ की बात कर रहा हूँ, ग्राफ कैसे प्लॉट होते हैं, राइट, कुछ नंबर्स को आपको समझने होंगे। मैं यहाँ पर एक ग्राफ आपको दिखा रहा हूँ, y is equal to 2 to the power x। कोऑर्डिनेट एक्सिस के बारे में पहले भी you have already studied this कि this is x axis and this is y axis। this is origin, यहाँ जो नंबर मेरे पास आ रहा है this is origin, this is
x axis, this is y axis, this is x prime, this is y prime, right? ये नंबर जो हम लोग बात करते हैं जो बहुत आगे तक जा रहा है, दिस इज नोन एज इंफिनिटी। ये भी पूरा आगे तक जो जा रहा होगा वो भी इंफिनिटी। ये इस तरफ अगर ये लाइक गोइंग देयर, तो दिस इज माइनस इंफिनिटी, दिस इज अगेन गोइंग फॉर माइनस इंफिनिटी। द एंड पॉइंट जो आखिरी का पॉइंट कुछ आ रहा होगा तो दैट्स इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। यहाँ पर एक ग्राफ मैं 2 to the power x की जो बात कर रहा हूँ, तो कुछ वैल्यूज यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। 2 to the power minus infinity is tending towards 0, 2 to the power 0 is 1, and 2 to the power infinity is tending towards infinity. ये तीन बातें हैं जो हमारे पास जिस पर हम लोग वर्क करते हैं, राइट? ये तीन नंबर को देखते हुए हमने कहा कि दिस कुड बी द ग्राफ ऑफ 2 to the power x। ये ग्राफ जो चलेगा 2 to the power x का ग्राफ चल रहा होगा। माइनस इन्फिनिटी पे ये 0 आ रहा होगा, 0 पर ये 2 जा रहा होगा, और इन्फिनिटी पे ये इन्फिनिटी जा रहा होगा। दिस इज द नंबर 0,1, राइट? ये एक सिंबॉलिक ग्राफ है। एक्चुअल आपने यहाँ पर y = a to the power x का ग्राफ बनाया हुआ है a greater than 1 के लिए। नेचर ऑफ द ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस। प्लीज नोट डाउन एवरीवन। स्पेसिफिक नाम नहीं होता बेटा। ये इसी ग्राफ में मैं क्या करता हूँ, आपको अच्छा सा पता चले कि कैसे ग्राफिक होते हैं। मैं 3 to the power, ये 2 to the power x का रेड वाला, राइट? ये मैंने 3 to the power x का ग्राफ ड्रॉ किया। ध्यान दो, ये नेगेटिव में दिस इज 3 to the power x। इसी में मैंने 4 to the power x ग्राफ ड्रॉ किया। दिस इज 4 to the power x, राइट? इसी में मैंने 1.5 to the power x ग्राफ ड्रॉ किया। राइट? सबका नेचर वैसा ही होगा। इफ a greater than 1, थोड़ी सी उसके जो इंक्लिनेशन है वो सब में चेंज होते जाए। ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंट्स, राइट? This is the first graph for a to the power x, a greater than 1. Done everyone? हाँ सर। राइट? अब यहाँ पर अगर मैं एक आपके तरफ क्वेश्चन थ्रो करूँ, लेट्स सपोज मुझे a to the power x का फिर से ग्राफ ड्रॉ करना है, बट a lies between 0 to 1, means y equal to 1/2 to the power x, राइट? 1/3 to the power x। ऐसा कुछ भी हो तो क्या नेचर में चेंजेस होने चाहिए? फर्स्ट थिंग, राइट, गो समथिंग लाइक दिस। ये दोनों लाइंस हमने ले ली, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी एंड ऑल दिस थिंग। यस समरोड? सर ऊपर से नीचे आएगा ना? डरा क्यों रहा है ऐसे? प्यार से बोलना, फिर से बोल, कैसे आएगा? सर वो माइनस इन्फिनिटी पे टेंड्स टू, मतलब इन्फिनिटी का वैल्यू होगा, फिर 0 पे 1 होगा, और फिर इन्फिनिटी पे 0 का वैल्यू होगा। वेरी गुड, राइट? 2 की जगह 1/2 है तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ माइनस हो जाएगा।
राइट। तो जहां पर 2 था वहां पर एक्चुअल में 2 टू द पावर माइनस एक्स का ग्राफ है, तो ये चीज रिवर्स हो गई। वही है 2 टू द पावर इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी जाएगा, लेकिन माइनस साइन है तो जहां पर वो दिख रहा था वो गया कुछ ऐसा। दिस इज 2 टू द पावर माइनस एक्स का ग्राफ। यहीं पर मैं 3 टू द पावर 4 टू द पावर जो भी चाहो, तो 4 टू द पावर माइनस एक्स मतलब 1/4 आ जाएगा। राइट। Yes, sir. तो दिस इज द ग्राफ ऑफ। इसमें दो चीजें आपको जानना है। डोमेन, डोमेन का मतलब होता है वैल्यूज ऑफ एक्स। ध्यान दो, एक्स की वैल्यूज माइनस से प्लस इंफिनिटी आपने ली है। एंड सेकंड इज द रेंज, रेंज इसकी है 0 से इंफिनिटी। राइट। सेम ऊपर वाले में भी है, डोमेन एंड रेंज। डोमेन एंड रेंज। यस, ओके। रेंज का मतलब होता है वैल्यूज ऑफ वाई। तो ध्यान दो, वाई की वैल्यू कहाँ पर मिनिमम जा रही है, तो कहीं 0 पर जा रही होगी, लेकिन एग्जैक्टली 0 मिलेगा कहाँ पर वो नहीं मालूम, इसलिए हमने 0 को ओपन पे रखा है। एंड जाते जाते कहाँ तक जा रही है, तो इन्फिनाइट तक जा रही है। सो दिस इज रिटन 0 टू इंफिनिटी। राइट। सो ये ग्राफ का नेचर। राइट। लेकिन यहाँ पर एक और ग्राफ जिसके बारे में हम लोग बार बार बात हो रही है, लॉग एक्स विद बेस 10। लॉग का ग्राफ अगर मैं ड्रॉ कर रहा हूं तो ये एक्सपोनेंट के ग्राफ के जैसा ही एक्स और वाई को जस्ट थोड़ा रिवर्स करता हुआ बनता है। कैसा, ये देखें। द ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस। ये पॉइंट है जहां पर ये 0 होता है, ये 0,1 है। राइट। ये 0 है। y इज इक्वल टू लॉग x विद द बेस 10, मतलब ये सिंबॉलिक ग्राफ है। ये है एक्चुअल में y इज इक्वल टू log x with a base a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तब ऐसा नेचर का ग्राफ बनेगा। इस ग्राफ में क्या क्या चीजें आप डिड्यूस कर सकते हो, राइट डाउन। कितने पॉइंट आपको नजर आ रहा होगा, राइट डाउन फॉर दिस ग्राफ। यस शिखर। सर अभी मेरे एंड पे साउंड नहीं आ रही थी, तो आप ये ग्राफ फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या बोला? मेरे को भी साउंड नहीं आई, फिर से बोलें एक बार। आप जब ये ग्राफ एक्सप्लेन कर रहे थे क्या है, तो साउंड नहीं आ रही थी, आप बोल सकते हैं फिर से? मैंने कुछ नहीं बोला ही नहीं बेटा। मैंने ये पूरा का पूरा ग्राफ बनाने के बाद सिंपल ये बोला कि आपको इस ग्राफ में क्या क्या चीजें नजर आ रही है, यू हैव टू राइट इट डाउन ना। और दूसरा एक चीज और रखा कि दिस log x with a base 10 is a symbolic graph. Actually this is the graph log x with a base a greater than 1. राइट। तो क्या क्या चीजें नजर आ रही है, डोमेन क्या है, रेंज क्या है, कब कहाँ पर वैल्यूज क्या जा रही होगी, ये वर्किंग आपकी प्लीज।
इतने पॉइंट्स हैं जो हमें नजर आने चाहिए। डोमेन 0 to infinity means values of x, range minus infinity to plus infinity, log 0 plus बोलने का मतलब होता है just 0 से थोड़ा सा ऊपर मैंने वैल्यूज दिया, that's not, we are not able to define that value, but 0 plus means 0 से just छोटी सी ऊपर वैल्यूज मैंने ली। उस समय you can see in the graph this is going to minus infinity, right? And log infinity is going to infinity, right? Log 1 is 0, right? So this is a perfect graph of this. This graph we are making for log x with a base a greater than 1, right? What if you have to try this few graphs, right? Log x with a base 1 by 2, yes, Omro. सर वो 0 प्लस क्या है सर, वो ठीक से नहीं समझा। जो तुरंत बताया मैंने बेटा, 0 प्लस का मतलब 0 से जस्ट ऊपर की वैल्यू इज रिप्रेजेंटेड एज 0 प्लस। मान लो 0.000000000, बहुत बार 0 लिखने के बाद 1 कुछ वैल्यू लिखनी है, ये लिख पाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता, राइट? तो उसे रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ इस तरह से हम लोगों ने टेक्निक बनाए हुए हैं, जिसको हम लोग नेबरहुड बोलते हैं, एंड दिस नेबरहुड इज log 0 plus is called the neighborhood point. सर तो फिर वो कांस्टेंट वैल्यू है 0 प्लस? एक फिक्स वैल्यू बेटा, उस फिक्स वैल्यू पर आपको नंबर पता चल रहा है कि क्या है। अच्छा ठीक है। हाँ? राइट, मैंने यहाँ जो लिखा log x with a base half, इस बार मैंने बेस को चेंज किया, तो ऑब्वियस सी बात है लॉग का नेचर भी चेंज होगा। एक्चुअल क्या नेचर चेंज हो रहा है, दैट्स इंपॉर्टेंट, राइट? लॉग का नेचर ये चेंज हो रहा है, राइट? कैसा चेंज हो रहा होगा, राइट? हाउ द नेचर ऑफ द लॉग इज चेंजिंग, राइट? नेक्स्ट क्लास में यहीं से हम लोग डिस्कशन शुरू करेंगे, राइट? वर्किंग जो रहेगी लॉग की ये जो है, राइट? इसमें क्या क्या चीज है जो आप देख पा रहे हो, नोट इट डाउन फास्ट, आप लिखना शुरू करें तो व्हाट यू कैन सी इन दिस वे। ग्राफ को रीड करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? जब ये आता है तो यू विल गेट द थिंग्स वेरी इजीली। वेरी गुड समर, देवांश, आदित्य, वेरी गुड। शिखर, वेरी गुड। लास्ट ग्राफ से मैच करते जाओ, बहुत सारी चीजें आपको पता चलती है। Again the domain, range, right? Log 0 plus for this graph is going to plus infinity, the base is half. 1 is still 0. Yes, Devraj. सर रेंज तो मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू होता है ना सर, तो इसमें 0 to infinity रेंज होना चाहिए ना सर, और डोमेन मतलब जहाँ पे डिफाइंड है फंक्शन।
ऐसे मत कर तू, मेरे को मैं समझा देगा। किसने बता दिया ये? रेंज का मतलब होता है वैल्यू ऑफ y ना। वैल्यू ऑफ x। अच्छा हाँ सर सॉरी वो उल्टा है इधर। ओके सॉरी सर। हाँ सर समझ गया सर, सॉरी सर। ओके एवरीवन। यस सर। तो जो इस बार का पेपर था वो एक बार आप लोग कंप्लीट देखेंगे। बहुत सारे नए क्वेश्चन मैंने दिए थे उसमें, क्योंकि राइट हाँ सर। आपको कंप्लीट देखने हैं वो पेपर को।